Good morning, students. This is Anil Kumar Soni, and in the last class, we have started the chapter number 2, inverse circular function, where we discuss some basic knowledge or basic concepts which are related to this chapter. Today, I will continue. Then, this is the horizontal axis, and this is vertical axis. Horizontal axis is known as a x-axis, positive x-axis as a negative x-axis, and the vertical axis is known as a y-axis. This is plus y-axis and this is negative y-axis, and these two lines, horizontal axis and vertical axis, divides this plane into four equal parts, and each part is known as a quadrant. This is the first quadrant. This is second quadrant. This is third quadrant, and this is fourth quadrant. Okay, and this line represents the 0 degree. This line represents the 90 degree. Means each lines are perpendicular to each other. Horizontal axis and vertical axis intersecting at 90 degree, and both axes are perpendicular to each other. So this line represents the 0 degree. This is the 90 degree. So this line represents the 90 degree. This is perpendicular. So this line represents the 180 degree, and this axis represents the 270 degree, and this axis represents the 360 degree. In 360 degree the first round is completed. Okay, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 90 डिग्री को, ये 180 डिग्री को, ये 270 डिग्री को, और ये 360 डिग्री को. रेडियन में बोला जाए तो 0 डिग्री एज ए 0 रेडियन, दिस इज पाई बाय 2 रेडियन, 180 को पाई रेडियन, 270 को 3 पाई बाय 2 रेडियन, and 360 go 2 pi radian. This is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. First quadrant can be represented as 0 plus theta. 0 में मैं कोई भी acute angle ऐड करूं, 0 में किसी को भी ऐड किया जाए, बट जो ऐड कर रहे हैं वो अपना acute angle होना चाहिए, मींस less than 90 डिग्री होना चाहिए. Then 0 plus theta represent the first quadrant, and 90 minus theta is also represent the first quadrant. Means 0 degree में मैं कोई भी acute angle ऐड करूं, then it goes in the first quadrant. Okay, और 90 degree में से कुछ भी acute angle को subtract करूं 90 minus theta, then it goes into the first quadrant. Then first quadrant can be represented as 0 plus theta and 90 degree minus theta, where theta is acute angle. इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं टू टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 0 प्लस थीटा भी बोला जा सकता है और 90 माइनस थीटा भी बोला जा सकता है. ये मैंने डिग्री में बोला, रेडियन में बोला जाए तो पाई बाय 2 माइनस थीटा. देन सेकंड क्वाड्रेंट इज रिप्रेजेंटेड एज 90 में एक्यूट एंगल ऐड किया जाए, देन 90 प्लस थीटा और पाई बाय 2 प्लस थीटा. 180 में से एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट किया जाए, देन 180 माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा, देन इट गोज इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट. तो सेकंड क्वाड्रेंट को मैं कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 90 में एक्यूट एंगल ऐड किया जाए मींस 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा, 90 में एक्यूट एंगल ऐड किया जाए तभी तो वो आगे की तरफ जाएगा. देन 90 प्लस थीटा और 180 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट किया जाए, देन 180 माइनस थीटा. This is the second quadrant. In the third quadrant, 180 में थीटा ऐड किया जाए, then it goes into the third quadrant. और 270 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट किया जाए, then it goes into the third quadrant. मींस हॉरिजॉन्टल वाले 180 में तो ऐड करने पर मींस पाई प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा, और यहाँ वर्टिकल में 270 माइनस थीटा या 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, then it becomes a थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, 180 प्लस थीटा
180 plus theta, but where theta is an acute angle, ये बात यहाँ पे नहीं, theta की वैल्यू 90 से ऊपर होगी, theta is less than 90 होगा. 180 plus theta, then it goes into the third quadrant and 270 minus theta. Okay, similarly in the fourth quadrant, 270 plus theta, 3 pi by 2 plus theta, और 360 minus theta, 2 pi minus theta and 0 minus theta. जैसे यहाँ 0 plus theta है, वैसे यहाँ 0 minus theta अपना फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा. देन 270 plus theta, 360 degree minus theta, 270 plus theta, then it goes into the fourth quadrant. 360 minus theta, then it goes into the fourth quadrant. 3 pi by 2 plus theta, 2 pi minus theta and also 0 minus theta. Then it goes into the fourth quadrant. Okay, फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं 0 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा. सेकंड क्वाड्रेंट को मैं 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा. थर्ड क्वाड्रेंट को 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा. एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और 0 माइनस थीटा. देन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric function or trigonometric circular function is positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए बेस अपना पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है एंड हाइपोटेन्यूस इज द डिस्टेंस बिटवीन द दीज टू पॉइंट्स. ओके, बेस पॉजिटिव, पॉजिटिव x axis, perpendicular positive y axis and hypotenuse is the distance between the this and this point and distance is always positive. So first quadrant में base positive, perpendicular positive and hypotenuse positive and the trigonometric ratio is the ratios of the sides of a right angle triangle. right angle triangles की sides का जो ratio होता है trigonometric ratio होता है sin theta p upon b, p upon h, perpendicular upon hypotenuse, cos theta base upon hypotenuse, tan theta perpendicular upon base. और नीचे के तीन इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं. तो यहाँ जब बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव है, तो जब सब पॉजिटिव है तो सभी रेशियो अपने पॉजिटिव ही होंगे. सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. Okay, in the second quadrant, base is negative minus x axis, perpendicular is positive and hypotenuse is the distance between these 2 points and hypotenuse will always remain positive. So only sin theta and cosec theta are positive and the remaining trigonometric ratios are negative. तो यहाँ में केवल जो पॉजिटिव है उन्हीं के बारे में लिखूंगा, जो उनके अलावा जो बचेंगे वो सारे नेगेटिव होंगे. देन इन द सेकंड क्वाड्रेंट sin theta and cosec theta are positive. Okay, and in the third quadrant base negative, perpendicular negative y axis and hypotenuse is the distance between these 3 points, these 2 points, so this is always remain positive. And then in the third quadrant tan theta and cot theta are positive and the remaining sin, cos, sec and cosec are negative. Only tan theta and cot theta are positive. Okay, and in the fourth quadrant base positive x axis, perpendicular negative in the negative y axis and hypotenuse is the distance between 2 points, then this is always positive. Then cos theta and sec theta are positive and the remaining 4 trigonometric ratios sin, tan, cot and cosec are negative. Okay, then in the first quadrant all trigonometric ratios are positive, means 0 plus theta, 90 minus theta, pi by 2 minus theta, 360 plus theta, 2 pi plus theta. Then this is the first quadrant and in the first quadrant all trigonometric ratios are positive. And in the second quadrant is represented by 90 plus theta or pi by 2 plus theta or
180 minus theta or pi minus theta, and in the second quadrant only sin theta and cosec theta are positive and the remaining four trigonometric ratios are negative, and the third quadrant is represented by 180 plus theta, pi plus theta, 270 minus theta, 3 pi by 2 minus theta, and in this quadrant only tan theta and cot theta are positive and the remaining four trigonometric ratios are negative, and last in the fourth quadrant is represented by 270 plus theta or 3 pi by 2 plus theta. हॉरिजॉन्टल एक्सिस से देखा जाए तो 360 minus theta, 2 pi minus theta and 0 minus theta. Then this is the fourth quadrant and cos theta and sec theta are positive in the fourth quadrant and remaining four trigonometric ratios are negative. Okay, then note it. The next topic is rules for finding the trigonometric rules for finding the value of trigonometric angles. Okay, rules for finding the values of trigonometric angles. Is the rules for finding the values of trigonometric angles की values को find करने का rule क्या है? क्योंकि अब तक हमने जो angles पढ़े हैं वो only first quadrant के लिए ही हमने trigonometric table पढ़ी है, but अब 90 डिग्री से बड़े एंगल्स की trigonometric angles की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड की जाएगी? Then first rule is rule first. If angle is 90 degree और रेडियन में बोला जाए तो पाई बाई 2. If angle is 90 degree or odd multiple of 90 degree, then sin and cos, tan and cot and sec and cosec are interchanged to each other, and sin is positive or negative, then sign depends on the quadrant in which this angle lies. Okay, the first rule is if angle is 90 degree or odd multiple of 90 degree, means 90 degree हो या 90 degree का odd multiple means 90 multiply 1, 90 multiply 3, 90 multiply 5, 90 multiply 7, means 90 को किसी भी odd number से multiply करना है. और यदि रेडियन में बोला जाए तो if angle is pi by 2 radian or odd multiple of pi by 2 का odd multiple means pi by 2 को 1, 3, 5, 7, 9, 11 से मल्टीप्लाई करना है, then pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, 9 pi by 2. और जो ये pi by 2 या 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल होता है वो हमारे वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है. then this is 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, 540 डिग्री, 630 degree and 720 degree. Okay, then if angle is 90 degree or odd multiple of 90 degree, then 90 बन जाए 90, 93 जा 270, 95 जा 450 और 97 जा 630, 99 जा
810। तो जो ये फर्स्ट रूल है वो हमारा कौन से एक्सिस के अकॉर्डिंग चलेगा, वो हमारा वर्टिकल एक्सिस के अलाउंग चलेगा। ठीक है, मींस जो भी एंगल है वो 90 डिग्री या 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो 90 और 90 का ऑड मल्टीपल हमेशा कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे आते हैं, वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियन में बोला जाए तो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2. Then this is the odd multiple of π/2. Then the odd multiple of π/2, if angle is 90 degree π/2 or odd multiple of 90 degree π/2, then this represent the vertical axis. और vertical axis के along यदि angle हो तो क्या रूल होता है, then sin and cos, tan and cot, sec and cosec are interchanged to each other. मींस क्वेश्चन साइन में है तो वो cos में कन्वर्ट हो जाएगा, cos में है तो sin में हो जाएगा, tan में है तो cot में, और cot में है तो tan में, sec में है तो cosec में, और cosec में है तो sec में चेंज हो जाएगा। एंड sin depends on the quadrant in which this angle lie. और sin पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा एंगल वो कौन से क्वाड्रेंट को लाइज कर रहा है। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। यदि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सभी रेशियोज हमारे पॉजिटिव ही आएंगे। एंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली sin theta and cosec theta are positive and the remaining four trigonometric ratios are negative. If angle lies in the third quadrant, then tan and cot are positive and the remaining four trigonometric ratios are negative. And if the angle lies in the fourth quadrant, then cos and sec theta are positive and the remaining all trigonometric ratios are negative. ठीक है, तो इसके एक दो एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे मुझे sin 150 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब मुझे 150 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने जो 10th 11th क्लास से पढ़ा हुआ है उसमें हमें 0 से 90 डिग्री मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स होते हैं उन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी थी। मुझे 150 डिग्री को फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स में चेंज करना। देन 150 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, मुझे फर्स्ट रूल अप्लाई करना है 90 डिग्री और 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल की फॉर्म में। 90 डिग्री का इवन मल्टीपल नहीं होना चाहिए, वो अपना सेकंड रूल बन जाएगा। ठीक है, देन 150 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, sin 90 प्लस 60। 150 को कैसे ब्रेक किया मैंने, 90 प्लस 60, देन एंगल इज 90 डिग्री। इफ एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री है या नहीं है एंगल, और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री बन जा 90 को 1 से मल्टीप्लाई किया एंड 1 इज ऑड नंबर, देन 90 डिग्री बोल दिया जा, और यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। देन क्या होगा, sin एंड cos आर इंटरचेंज टू ईच अदर, मींस sin cos में चेंज हो जाएगा और cos में होता तो sin में चेंज हो जाता, देन cos। ये 90 डिग्री के अकॉर्डिंग तो हमें ये पता चल रहा है कि चेंज करना है या चेंज नहीं करना है। 90 डिग्री और 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल होने पर sin कन्वर्ट इनटू द cos, देन 60 डिग्री। एंड sin डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट, मींस cos 60 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 150 डिग्री वैसे क्लियर पता चल रहा है, 150 डिग्री अपना सेकंड क्वाड्रेंट में, या 90 प्लस थीटा। अभी मैंने आपको बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। देन there 90 plus theta, then 90 plus theta is the second quadrant, and second quadrant sin is positive, second quadrant में sin क्या होता है, पॉजिटिव। अब आपको इसका साइन नहीं देखना कि ये साइन चेंज हो गई cos में आ गया, तो आप cos का साइन देखिए कि cos कैसा होता है। हमें जिसमें अपना क्वेश्चन है उसको देखना है कि क्वेश्चन साइन में है, तो हमें साइन का ही साइन देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, देन प्लस cos 60, and the value of cos 60 is 1/2, then the value of sin 150 degree is 1/2. Okay, then this is a first rule. According to the first rule we find the value of sin 50. एक एग्जांपल और ले लेते हैं, tan 300 डिग्री। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल। 90 डिग्री और 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल लेना है, तो 90 की टेबल बोलिए कि 300 के नजदीक पहुंच जाए। 90 बन जाए 90 2 जा नहीं करना है, क्योंकि 2 जा में वो कौन सा मल्टीपल हो जाएगा,
इवन मल्टीपल हो जाएगा, बट अपने फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमें वर्टिकल एक्सिस पे ही देखना है। वर्टिकल एक्सिस पे कौन से मल्टीपल आते हैं? ऑड मल्टीपल। देन 90 into 3 270, 3 into 90 कितना? 270। 270 90 का देखिए ऑड मल्टीपल है, 90 बन जाए 90, 93 जा 270, इसको मैं 270 डिग्री भी लिख सकता हूं। देन 270 में कितना ऐड करें? 30 डिग्री। ओके, देन 90 डिग्री और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन tan एंड cot आर इंटरचेंज टू ईच अदर। tan किस में चेंज हो जाएगा? cot में। किसके अकॉर्डिंग? इधर जो फर्स्ट में जो एंगल अपना राइट हो रहा है 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, देन tan कन्वर्ट इनटू द cot, देन cot 30 डिग्री, एंड द साइन डिपेंड्स the quadrant in which this angle, like 3 into 9 means 270, and 270 plus theta, it goes into the fourth quadrant, and in the fourth quadrant tan and cot are negative, only cos and sec are positive, so this is minus cot 30. Okay, minus, and the value of cot 30 is √3. so tan 300 की वैल्यू कितनी हो गई है अपना? -√3, बिकॉज हमें tan का साइन देखना है और tan अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, देन वी अप्लाई द नेगेटिव साइन, देन माइनस का √3। ओके, क्लियर? देन दिस इज द फर्स्ट रूल, एंड फर्स्ट रूल गोज अकॉर्डिंग टू द वर्टिकल एक्सिस, एंड सेकंड रूल जो होगा वो अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग होगा, और हमेशा हमें ज्यादातर सेकंड रूल के अकॉर्डिंग ही एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, सो नॉट इट। If angle is 180 डिग्री, 180 डिग्री को रेडियन में पाई रेडियन, और एनी मल्टीपल मीन्स इवन एंड ऑड दोनों ही ले सकते हैं। क्या इसको मैं 90 डिग्री के अकॉर्डिंग रूल को बोल सकता था? इफ एंगल इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मतलब इस बार 90 डिग्री को 2, 4, 6 से 10 से मल्टीप्लाई करना है, या उसको मैं 180 भी बोल सकता हूँ। 90 को 2 से करेंगे तो 180, और 180 को 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करना है। देन इफ एंगल इज 180 डिग्री मींस पाई, और एनी मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री और पाई मींस 180 बन जा 180, 182 जा 360, 183 जा 540, 184 जा 720। इसमें मुझे 180 डिग्री का कोई भी मल्टीपल लेना है, मींस इसको सभी नेचुरल नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है। इफ एंगल इज 180 डिग्री और पाई, और एनी मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री पाई, देन sin, cos, tan, cot, sec and cosec are not changed। इस क्वेश्चन जिसमें है वो इसमें ही रहेगा, are not changed, and sin depends on the quadrant in which this angle lies। इसके लिए वही रूल है, and the sign depends on the quadrant in which this angle lies। ओके, देखिए 0, 90, 180, 270, 360। अब जो अपना सेकंड रूल है वो अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग चलेगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री का एनी मल्टीपल मींस कोई भी मल्टीपल हो, 180 डिग्री को मैं 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, देन 0, और वैसे भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 0 एंगल भी रिप्रेजेंट हो रहा है, देन 0 आ जाए, 180 आ जाए, 180 को किसी से मल्टीप्लाई किया जाए, 180 बन जाए 180, 182 जा 360, 183 जा 540, 184 जा 720, 185 जा 900, 186 जा 1080 डिग्री। सो ये हमारा जो सेकंड रूल है वो अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग चल रहा है। देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग यदि हमारा रूल अप्लाई हो रहा है, देन sin, cos, tan, cot एंड sec, cosec आर नॉट इंटरचेंज। मींस sin में क्वेश्चन है तो sin में ही रहेगा, cos में है तो cos में ही रहेगा, tan में है तो tan में ही रहेगा, cot में है तो cot में ही रहेगा, sec और cosec में है तो sec एंड cosec में ही रहेगा। बट sin डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट इन व्हिच द एंगल लाइज। तो देखिए
इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को मैं सेकंड रूल के अकॉर्डिंग आपको चेंज करके बताता हूँ, उससे भी देखते हैं आंसर यही आता है नहीं आता। साइन 150 डिग्री, हमें 150 डिग्री को मुझे ब्रेक करना है, जिसकी फॉर्म है 180 की फॉर्म है, देन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, 180 माइनस 30, 180 में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, देन 150, देन एंगल इज 180 डिग्री मींस पाई, और एनी मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, देन साइन में ही रहेगा, कॉस में चेंज नहीं होगा, देन साइन 30 डिग्री, and the sign depends on the quadrant which the angles like 180 minus theta. 180 minus theta represent the second quadrant, and in the second quadrant sin theta is positive, so plus sin 30, and the value of sin 30 is 1/2. देखिए सेम आया। सिमिलरली tan 300 को भी अपन सॉल्व करते हैं। ओके, tan 300 को tan, अब देखिए 90 के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना, अब हमें 180 की टेबल बोलनी है। 180 में कितना ऐड किया जाए, तो 180 में जो भी ऐड हो रहा है वो ऐड होने वाला हमेशा एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो 180 में 120 ऐड करेंगे, बट 120 एक्यूट एंगल नहीं, तो 180 की टेबल बोल लेते हैं। 180 में जब 180, 182 जब 360, अब 360 ज्यादा है तो इसमें से मुझे 60 डिग्री को माइनस करना होगा, देन 2 into 180 कितना हो गया, 2 को 180 से किया, 180 डिग्री हो और एनी मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, 180 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, इवन या ऑड कुछ भी, तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 360, 360 माइनस 60, देन दिस इज द 300 डिग्री, 2 को 180 से किया, 360, 360 माइनस 60, 300 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री हो और एनी मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, देन tan इज 10 में ही रहेगा, 10 कॉट में कन्वर्ट या चेंज नहीं होगा, देन tan 60 डिग्री, एंड साइन डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट इन विच द एंगल लाइक। अब हम देखते हैं कि कौन से में करेक्ट। 2 into 180 डिग्री मींस 180 डिग्री मुझे 2 टाइम्स राउंड करना है, या 2 into 180 डिग्री मींस 360 डिग्री, 180 फिर 180, 360 और 360 में से माइनस किया, देन इट गोज इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट tan थीटा इज नेगेटिव, and in the fourth quadrant tan theta is negative, only cos theta and sec theta is positive, so minus and the value of tan 60 is √3। okay, so हमें आगे जब भी चेंज करना होगा फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं करेंगे, हम हमेशा सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ही हम एंगल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक और रूल है जिसके अंदर यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट का भी मैंने बताया था, 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा को मैं ओनली माइनस थीटा लिख सकता हूं बिकॉज़ 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो sin 0 माइनस थीटा ये हमारे कौन से एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है, मींस इसमें फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है, सेकंड रूल अप्लाई हो रहा है। सेकंड रूल अप्लाई हो रहा है कि 180 और 180 का कोई भी मल्टीपल हो तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही आ रहा है, तो sin 0 माइनस थीटा के अंदर भी सेकंड रूल ही अप्लाई होगा। तो एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट बनेगा इसमें, क्या बनेगा, साइन 0 माइनस थीटा क्या होगा, 0 180 और 180 की किसी भी मल्टीपल हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट करे तो 0 भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, देन वी अप्लाई द सेकंड रूल, सेकंड रूल है तो साइन में ही रहेगा, साइन थीटा, और साइन इस बात पे डिपेंड्स करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, देन 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली cos एंड sec पॉजिटिव होता है, sin नेगेटिव होता है, माइनस sin थीटा। ओके, अब 0 माइनस थीटा को मैं माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, ये 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, देन sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, बिकॉज़ माइनस थीटा रिप्रेजेंट्स द फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 माइनस थीटा 0 का कोई रोल नहीं है, देन माइनस थीटा रिप्रेजेंट्स द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली cos and sec are positive and the remaining four trigonometric ratios are negative, tan minus theta minus tan theta, cot minus theta minus cot theta, sec minus theta plus sec theta, because minus theta represents the fourth quadrant and sec theta is positive in the fourth quadrant, and cosec minus theta
is minus cosec theta. Okay, then it is not. इसको भी नोट कीजिए.